Morning students. Today we discuss about the subsidiary books. So before going for the topic, just I want to let you know about the accounting functions. As we discussed in earlier case, like accounting is a process of recording, classifying, summarizing. So this process we discussed. Accounting is a process of recording, classifying and summarizing. So as a process of recording, we recorded the transactions in the journal. अकाउंटिंग का जो ट्रांजैक्शंस पहले है कि अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग है, क्लासीफाइंग है, समराइजिंग है. तो रिकॉर्डिंग प्रोसेस हमने जर्नल में किया था और क्लासीफाइंग हमने किया लेडजर में. तो जैसे हम रिकॉर्डिंग प्रोसेस जर्नल में किए हैं, तो फॉर राइटिंग इन द जर्नल one must know the rules of accounts, and based on the rules of accounts we record that in the pro forma specified. So जैसे हम एक अकाउंट को डेबिट करते हैं, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हुए हम रिकॉर्ड करते हैं. Now what we do is basically it will be like a tedious process. Writing the journal is a tedious process and time consuming. That's the reason we subdivide the journal into 8 parts. Journal is subdivided into 8 parts, that is purchase book, purchase returns book, sales book, sales returns book, cash book, bills receivable book, and bills payable book, and the last one finally is journal proper. So one book, that is journal, is subdivided into 8 parts, that is into 8 books. For recording our transactions, for making our convenient of recording process, we categorize them into different heads, like that is purchase book, purchase return, sales return, cash, bills receivable, bills payable and journal proper. We record in the first 4 books, we record the transactions related to goods, and it must be on credit basis. Or in cash book we record only the cash basis related transactions. If the transaction is on cash basis, we record in this book. Bills receivable, bills payable book, we record bills receivable and bills payable related information. And finally the journal proper, in this book we record the transactions which does not come under any of this category. मतलब हम ये फर्स्ट 4 बुक्स में गुड्स और क्रेडिट बेसिस के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और कैश बुक में हम कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, और बिल्स रिसीवेबल बुक में बिल्स रिसीवेबल इन्फॉर्मेशन, और बिल्स पेएबल में बिल्स पेएबल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं. जैसे जर्नल प्रॉपर इज ए बुक इन विच वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन विच डज नॉट कम अंडर एनी ऑफ दिस 7 बुक्स. ये 7 बुक्स में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग नहीं होता है, उस ट्रांजैक्शन को हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं. तो टू बिगिन विथ 1 by 1, आज हम डिस्कस करेंगे दी फर्स्ट 4 बुक्स ऑफ द सब्सिडरी. सो द फर्स्ट बुक इज, एज आई सेड, परचेज बुक, और सेकेंड इज परचेज रिटर्न्स बुक. वी आर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट 4 बुक्स ऑफ द सब्सिडरी बुक्स, purchase returns book, sales book, and then sales returns book and sales returns book. जैसे ये 4 books में there is some similarity is there, that is one, these are all related to goods, and the similarity number 2 is the transaction which is on credit basis only will be recorded in this. So transaction record करते वक्त इस 4 बुक्स के बारे में अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इफ़ यू आर रिकॉर्डिंग इन दिस 4 बुक्स, सी टू इट दैट यू रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू द गुड्स एंड विच आर ऑन क्रेडिट बेसिस. सो रिकॉर्ड करते वक्त हमें एक याद रखना है कि इस बुक में 2 कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करना चाहिए. 1 है वो गुड्स रिलेटेड होना चाहिए, और दूसरा क्रेडिट बेसिस पे होना चाहिए. गुड्स रिलेटेड है और परचेज है तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे,
गुड्स रिलेटेड है और परचेज रिटर्न्स हैं तो परचेज रिटर्न में एंट्री करेंगे। गुड्स रिलेटेड है और सेल्स है तो सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न। दैट मीन्स द ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिलेटेड टू गुड्स। सो इफ इट इज रिलेटेड टू गुड्स, it may be a purchase, it may be a purchase return, it may be a sale, it may be a sale return. In the introduction part I told you, goods we don't use an account, instead it is replaced with 4 items, 4 names. If it is purchase, it will go to purchase. If it is a purchase return, it will go to purchase return. And if it is a sale, it is a sales return. So once again I am telling you, for recording in these books, only the condition you should see, is it related to goods, इज इट ऑन क्रेडिट बेसिस। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें कोई रूल्स ऑफ अकाउंट्स हमें फॉलो नहीं करना है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वी रिकॉर्ड इन ए पर्टिकुलर बुक विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए स्टेटमेंट, मतलब एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में रहेगा और इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस ओनली विच आर रिलेटेड टू गुड्स एंड क्रेडिट बेसिस। तो पहले हम परचेज बुक से स्टार्ट करेंगे। परचेज बुक में हम वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स रिलेटेड, कंडीशन नंबर 1 गुड्स रिलेटेड, कंडीशन नंबर 2 क्रेडिट बेसिस, कंडीशन नंबर 3 इट मस्ट बी ए परचेज। इफ यू आर परचेजिंग द गुड्स, देन इफ इट इज ऑन क्रेडिट बेसिस इट विल कम इन द परचेज बुक। सिंपल कंडीशन, ट्रांजैक्शन आपको देखना है और ट्रांजैक्शन अगर परचेज ऑफ गुड्स है और क्रेडिट बेसिस में है तो इस बुक में आएगा, और ट्रांजैक्शन अगर क्रेडिट बेसिस में नहीं है तो इसमें नहीं आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 हम ले रहे हैं, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एम 60,000। तो इस ट्रांजैक्शन में आप देख सकते हैं गुड्स रिलेटेड है, कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड, और एम को हम एम से परचेज कर रहे हैं, देयर इज नो कैश इन्फॉर्मेशन, सो इट इज ऑन क्रेडिट बेसिस, कंडीशन नंबर 2 इज सेटिस्फाइड, and it is related to purchases, so it will go to purchase book। 3 conditions satisfy कर चुका है। Suppose second one, purchase of goods from Ram for cash 30,000। condition number 1 goods is satisfied, condition number 2 Ram है लेकिन cash basis है, hence condition number 2 is not satisfied, hence it won't come in the purchase book though it is purchase of goods। ये purchase of goods है लेकिन because of it is in nature of cash basis it is not satisfying the second condition of credit basis, so ये हमारे purchase book में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। transaction number 3, purchase of furniture for rupees 30,000 from T। Now you can see condition number 1, ये फर्नीचर है, इट्स नॉट रिलेटेड टू गुड्स, सो कंडीशन नंबर 1 इज नॉट सेटिस्फाइड, दो इट इज ऑन क्रेडिट बेसिस, कंडीशन नंबर 2 सही है लेकिन कंडीशन नंबर 1 इज नॉट सेटिस्फाइड। सो परचेज बुक में हमें रिकॉर्ड करने के लिए यू मस्ट सी 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड आर नॉट। कंडीशन नंबर 1, इट मस्ट बी रिलेटेड टू गुड्स एंड इट मस्ट बी ऑन क्रेडिट बेसिस। तो जैसे प्रोफार्मा हम देखते हैं, प्रोफार्मा इज ए स्टेटमेंट, इसमें कोई हम 2 बाई रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। सो प्रोफार्मा में हम परचेज बुक का प्रोफार्मा इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ हम लिखते हैं परचेज बुक, या तो साइड में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें होगा कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम होगा डेट, उसके बाद होगा पर्टिकुलर्स, हम लेते हैं यहाँ डेट पर्टिकुलर्स, उसके बाद हम लेंगे डेबिट इनवॉइस नंबर, राइट, इनवॉइस नंबर जिसे हम बेसिकली इनवॉइस से लेते हैं, LF लेडजर फोलियो नंबर यहाँ पे भी होता है। उसके बाद हम लेंगे डिटेल्स और देन अमाउंट। सो दिस इज कॉल्ड एज इनवॉइस नंबर एंड दिस इज कॉल्ड एज पर्टिकुलर्स, जहाँ हम लिखते हैं ये डेट है। और सिंपल सा ये प्रोफार्मा में कैसे एंट्री करते हैं, बेसिकली इसमें एंट्री करने के लिए द बेसिक थिंग्स आर
द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द फर्स्ट कॉलम इज अबाउट डेट. यहाँ पे फर्स्ट कॉलम डेट है और सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स है. जैसे यहाँ 6 कॉलम्स ले रहे हैं हम. फर्स्ट कॉलम इज अबाउट द डेट and you know date means date of the transaction we write here. In the particulars column simple कुछ नहीं लिखना है. name of the person from whom we bought the goods. इससे पहले एग्जाम्पल में मैंने समझाया आपको परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एम. तो यहाँ पे सिंपल एम बोल के लिखना है. नो टू, नो बाई, नो अकाउंट, नथिंग. खाली नाम लिखना है. जिससे हम परचेज किए उसका नाम लिखना है और यहाँ डेट होगा. और इनवाइस नंबर बेसिकली होता है जो परचेज करने पर जो बिल हमें दिया जाता है उस बिल के राइट कॉर्नर में एक नंबर प्रिंट किया जाता है, उस नंबर को लिखना होता है. सो दैट इज़ अ रेफरेंस ऑफ दैट ट्रांजैक्शन की हमने क्या ट्रांजैक्शन किया है. सो दैट इनवाइस नंबर इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन वी राइट इनवाइस नंबर, अदरवाइज वी राइट सीरियल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रांजैक्शंस. फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए 1 होगा, सेकंड के लिए 2 होगा. सो सीरियल नंबर्स वी राइट व्हेन इनवाइस नंबर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ LF वी लीव द ब्लैंक. एज यू नो जर्नल में भी था. डिटेल्स में सपोज इफ यू आर बाइंग मोर देन वन आइटम फ्रॉम M, अगर M से हम अगर 3-4 आइटम्स परचेज कर रहे हैं. से एन एग्जाम्पल आवर्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप एंड इफ यू आर बाइंग फ्रॉम M 2 ट्यूब लाइट्स, 2 स्विचेस, 2 बोर्ड्स ऐसा परचेज कर रहे हैं तो ऑल दैट विल बी मल्टीप्लाइड एंड टेकन हियर एज ए इनर कॉलम और टोटल को हम आउटर कॉलम में डालते हैं. दैट इज एन अमाउंट. हियर वी राइट एज ए टोटल अमाउंट एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट लाइक अ डिटेल्स जो है यहाँ पे एंट्री होगा. सो द डिटेल्स इंडिकेट्स फ्रॉम हेम what are we purchased, that amount will be shown here and the total comes in the outer column. Similarly, all the transactions which to record here and at the end of the day, that means end of the month, here हमें लिखना है total, simply total और total कर लेना है, कुछ नहीं, बस इतना ही है. This is called as purchase book. हम इसे परचेज बुक कहते हैं. इसमें हमें कुछ नहीं करना है. सिंपली वी एंटर इन द डेट कॉलम. फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं. अगर ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस में है और गुड्स रिलेटेड हैं, सो वी रिकॉर्ड द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन हियर. वी राइट द नेम ऑफ द पर्सन, वी राइट द इनवॉइस नंबर, वी राइट LF, वी राइट द डिटेल्स एंड देन अमाउंट. ये हमारा परचेज बुक है. सिमिलरली अगर हम इसे सेल्स बुक कह दें तो प्रोफार्मा रिमेन सेम. सेल्स बुक का भी प्रोफार्मा वही होगा, लेकिन यह नाम किसका होगा? जिसको हम सेल कर रहे हैं उस पर्सन का नाम होगा. सो परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न सबका प्रोफार्मा एक ही होता है. केवल दिस इनवाइस नंबर को हमें चेंज करना होता है, बाकी का एज इट इज है, कोई चेंज नहीं. सो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन में? परचेज बुक हो या सेल्स बुक हो, परचेज रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो, हमें यहाँ डेट लिखना है उस ट्रांजैक्शन का और यहाँ पर्टिकुलर्स में नाम लिखना है और इनवाइस नंबर में नंबर लिखना है और डिटेल्स में जो भी हम परचेज कर रहे हैं उनका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है. अमाउंट सपोज आई एम बाइंग फैंस 300, कूलर्स 500, सो 300 500 यहाँ पे डाल के टोटल हम लिखेंगे 800 यहाँ पे. वैसे ही पूरे ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद फाइनली अमाउंट कॉलम का टोटल करना है, किसी और का नहीं करना है, खाली अमाउंट का टोटल करना है और सिंपली वी शुड राइट इट एज ए टोटल. सो सब्सिडरी बुक्स में बस इतना ही करना है हम लोगों को. परचेज हो, सेल हो, परचेज रिटर्न हो, सेल रिटर्न हो. तो परचेज का प्रोफार्मा यही है, परचेज बुक का प्रोफार्मा, सेल्स बुक का प्रोफार्मा यही है. और परचेज रिटर्न में इनवाइस नंबर की जगह हम लिखेंगे डेबिट नोट नंबर. डेबिट नोट नंबर. परचेज रिटर्न्स में दिस इज रिटर्न इन द केस ऑफ परचेज रिटर्न्स, दिस इनवाइस नंबर इज रिप्लेस्ड विथ डेबिट नोट नंबर. सो लेट्स सी व्हाट इज डेबिट नोट नंबर एक्चुअली. डेबिट नोट नंबर is a number of the note which we have issued to the person from whom we purchased the goods, indicating the return of the goods and the details of the goods returned to him. यानी सपोज मैंने आपसे गुड्स परचेज किया
10,000 रुपीज़ का गुड्स डिस्क्रिप्टिव है, कुछ फैंस खरीदा है, कुछ ट्यूबलाइट्स, कुछ बल्ब्स खरीदा है, कुछ स्विचेस, कुछ बोर्ड्स, सब कुछ खरीदा है। उसमें से मुझे एक ट्यूबलाइट मुझे डिफेक्टिव है, तो आई वांट टू रिटर्न दैट ट्यूबलाइट ओनली। सो आई प्रिपेयर ए नोट, in which I mention that what product is defective and what I am returning, that quantity I'll write in that, and I'll tell you that this is the goods which I am returning to you। ये मैं रिटर्न कर रहा हूँ आपको। एक नोट प्रिपेयर करूँगा, एक इनवाइस प्रिपेयर करूँगा और इसे आपको सेंड किया जाएगा along with the goods what I am returning। सो इस पे जो नंबर होगा उसे हम बोलते हैं डेबिट नोट, इसे कहते हैं डेबिट नोट। और इसमें नंबर जो रहेगा नंबर, वो डेबिट नोट नंबर होगा। बट क्वेश्चन में डेबिट नोट नंबर नहीं दिया जाएगा, तो इनवाइस नंबर के जैसे ही 1 2 3 4 सीरियल नंबर ही लिखना है। एक्चुअली हम डेबिट नोट क्यों कहते हैं? व्हेन आई एम परचेजिंग फ्रॉम एम, आई राइट एन एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू एम। यानी जब मैंने गुड्स परचेज किया, एम को क्रेडिट किया था, अब मैं रिटर्न कर रहा हूँ उसको गुड्स, तो इसको मैं क्या करना चाहिए? कैंसिल करने के लिए उसे डेबिट करना होगा। इसलिए मैं इस डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई करूँगा कि दिस वैल्यू ऑफ गुड्स आई एम रिटर्निंग टू यू टू द एक्सटेंट ऑफ विच आई एम डेबिटिंग यू। सो डेबिटिंग नोट है ये, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि डेबिटिंग नोट। और सेल्स रिटर्न में द क्रेडिट नोट नंबर रहेगा, मतलब it will be given by the कस्टमर। हमारा जो कस्टमर है, जो परचेज करता है हमसे, वो हमें रिटर्न करेगा, मतलब सेल हम करेंगे, रिटर्न वो करेगा, तो इसे क्रेडिट नोट कहते हैं। तो सिंपल एक लॉजिक याद रखना है, इनवाइस नंबर परचेज और सेल्स बुक में इनवाइस नंबर होगा, और परचेज रिटर्न में होगा डेबिट नोट नंबर, और सेल्स रिटर्न में होगा क्रेडिट नोट नंबर। बाकी का प्रोफार्मा कोई चेंज नहीं, डेट में डेट, पर्टिकुलर्स में नेम, और इनवाइस नंबर में 1 2 3 4 सीरियल नंबर अगर नंबर नहीं दिया, LF शुड बी लेफ्ट ब्लैंक। डिटेल में 2 3 आइटम्स है तो यहाँ पे टोटलिंग के लिए यूज़ करना है, और अमाउंट में नेट अमाउंट डालना है। नेट अमाउंट का मतलब याद रख लो, नेट अमाउंट इज इक्वल टू ग्रॉस अमाउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट। Keep it in your mind. If at all there is any trade discount is given in the question, you must subtract the trade discount and should be taken in this total column. So once this is done, you have to take the totals of all. So this is about the subsidiary books, which consist of 4 books we have discussed about it. One is about purchase book, purchase returns book, sales book and sales returns book. Once again I am recalling, for the purpose of recording transactions in this, the condition number 1 is ये goods related होना चाहिए और credit basis। तो सिंपल है, आपको ये प्रोफार्मा याद रखना है। पहले आपको इस प्रोफार्मा को याद रखना है, एंड वंस यू रिमेंबर दी प्रोफार्मा, यू रिकॉल कि कंडीशन हमें रिकॉर्ड करना है नहीं करना है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस हमको दिया जाएगा, जैसे 1 2 3 4 ट्रांजैक्शंस दिया जाएगा। हर एक ट्रांजैक्शन को हमें रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है कि गुड्स रिलेटेड है और क्रेडिट बेसिस में है। देन ओनली वी रिकॉर्ड इन दिस बुक्स। एंड फाइनली व्हाट वी डू, आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस, वी शुड टेक द टोटल ऑफ ऑल दीज अमाउंट्स एंड देन यू शुड राइट टोटल हियर, या टोटल बोल के लिखना है। So that's all about the subsidiary book, 4 books about purchase return, sales return. So in my next video or next class, I'll be sending you a video on how to solve the problems of the subsidiary books. Then we can move on to the next topic. Go through this video clearly. If you have any questions, you can ask, and you have to prepare the notes based on this. Okay, see you then.